Good evening, everyone. My name is Sanchit Taksali, and we'll start with today's session about how to pass financial regulatory exams like NISM series. So, in today's session, we'll be discussing about how you can ace the NISM exams. You'll learn why it is important to appear for the NISM exam, what are the professional career options one would have while appearing for these exams, and we'll also discuss about certain strategies which can help you out in clearing those NISM exams. So without wasting much time, let's start with the session part, and let's understand out how we can exactly clear all these exams. But before that, we'll make this session more on the English and the Hindi side also, so that one could understand that what are the challenges as a beginner or even the professionals who person professional in the terms who are being working professionals in this industry and still faces challenges while carrying all these exams. So let's start with the session. I'll just start sharing my screen and we'll understand out what are the major things one could need to know before appearing for the NISM, that is National Institute of Securities Market exam. I'll just share my screen. Okay, so now we'll begin with the screen sharing part. I hope my screen is visible. Yeah. Okay, as my screen is visible. So in today's webinar, we'll be discussing about the importance of NISM exams. NISM exams की क्या importance रहती है, एक इंसान को NISM एग्जाम क्यों अपियर करना चाहिए, अगर वो फाइनेंशियल मार्केट्स में एंट्री ले रहे हैं तो उनको क्या मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं. We even need to identify what are the strategies we need to apply before giving the NISM exams, and we even need to understand, let's say you select any NISM certification course or exam, but you need to understand what their marks and weightages work while in these exam part, and also the type of questions generally comes in the NISM exam parts. So generally the question comes on the basis of a statement based. There is always a statement comes in and you have the two options or even the three options. You have to identify which statement is right or wrong. That again come into the subsection part of true and false. Some questions are if and else or reasoning based questions. Another one are mostly are the case studies and numerical based questions. And the last certain types of question generally comes in the NISM exams are the fill in the blanks type of question. Now, the first and the foremost step which one need to understand about the exam is we need to identify whether you are a beginner or you are being a working professional. The first and the foremost thing is we need to identify what kind of NISM exam you can appear for. So for that thing, you can visit the link nism.ac.in/NISM certification. I've already opened the sheet link part. Once you open this sheet, open this link, you will get to know there are certain exams. Okay, and there are almost, if you go through it, there are almost more than 31 exams are there of the NISMs. But yes, when you come over here on the left hand side, you can clearly see the name of the exam generally comes in. As you can see कि यहाँ पे आपको हर तरीके के एग्जाम से नेम दिख रहे हैं, whether it's investor certification exam, it is for those investors who are being just beginning their career in the stock market. तो ये एग्जाम उनके लिए काफ़ी अच्छा, it's a free of cost exam. If someone wants to come and appear for the derivatives, learns the derivatives market in depth and the rules and regulations, they can offer these derivative exams also. Registrar and transfer agent exams, compliance. So all these exams contains the benefits also and the use case also in the industry part. So if you want to know which exam has a certain use case in the industry, you can click on any of these exams. So let's say I click on the first exam called NISM Currency Derivative Certification Exams. It's an NISM series, one of the exams. We can clearly see the revised launch. That is, this exam has been last updated was in August 22, 2024. So now comes to the what for whose exam this is useful for. So it is useful for those exams, for those market participants who wants to work in the currency segment, who are being looking to hedge the currency, who needs to understand how the currency exports and import works, and for investors also. So these are the exams and really use case for these investor or the market participants. But when we are going through all these exams, there are certain things which as a
examies, we need to understand that all exams carry certain kind of a questions. All these exams have MCQs based question, that is a multiple choice based questions, but certain exams carries negative marks also, or the positive marks, or the zero negative marks, right? So one thing we always need to understand that which exam you are applying for, the purpose of the exam, and the assessment structure. So once we have identified what kind of exam one needs to appear for, and I'll just go to the back side, okay? Appear for, we need to understand the exam assessment structure. As I said, there are certain things which always one need to define, we always need to understand while appearing for this exam. So as I said, the first and the foremost thing comes up whether the exam costly. So we get to know the what the price of this exam if we have appeared for any of these exams. So currency derivative exams come for the dealers, or for someone who wants to work in the currency market. Similarly, if someone wants to establish their own mutual fund business, or someone wants to work in the mutual fund industry, or working in any asset management company, for them mutual fund NSM 5A series exam is one of the good exams. So generally it costs you around 1500 rupees, and this exams contain 100 marks, and number of question comes is 100. We can clearly see the number of question comes in the passing marks rate and the negative marking along with their validity. So these are the things we get to know about the NISM exams. So when it comes to the NISM exam, the foremost thing that is important, which as an individual, when we are going or appearing for these exams, we need to understand that how much marks we are getting in, how many questions will come in. So we can see that all the exams contain almost 100 questions. There are certain exams which only contains 100, less than 100 questions. Some exams contain more than 100 questions, that is 150 questions. So we have to go through the number of question sets also to identify how we can pass in these exams. So let's move on understanding on. So for the example part, let's understand, and we'll take one exam. Let's say one of the most prominent and the most demanding exam when it comes to the financial market is the equity derivatives exam. Okay, that's the minimum eligible passing rate in the financial market is 60%. Okay, that's the series number. That's this is about the currency market. 5 is about the mutual fund. When we go to the 8 one, that is an equity derivative exams. We are just taking for the example. We can clearly see 1500 time duration is 2 hours, 100 questions, 100 marks. The passing rate, that's the minimum eligible passing rate is 60%, and this exam is of 3 hours, and the negative marking is 25% for the incorrect answers. So let's understand how this exams can be useful for. Okay, so first and the foremost thing, once we have identified the benefit and the purpose of this exam, we need to understand how the negative marking and all these works. The second another factor which all we need to remember is the time available. So we have 3 hours for the equity derivative exams. Number of questions we have clearly see for the equity derivatives is 100, and the 60% minimum we need to take the passing part. The next step comes in while appearing for this exam is to analyze the weightage, how much weightage और which topic contains in this exam. So जब हम equity derivatives की बात करते हैं, it's generally being preferable for dealers or someone who has to work as a sub broker. So they need to appear for this exam. This exam contain features and options, equity investments, learning. So we need to understand what are the course materials are there. So whenever we appear for all these exams, we need to understand how the course material works. So the question comes in if how we get the course material part. So when you register for the NISM exam on the NISM certification portal, you get a free workbook. In case you don't want to register but you want to access the workbook at present, so you can do one thing. You can go to the this side itself. You can go over here, click on the study material. Once you click on the study material, they ask you for the certain details. Once you fill on all these details, you get a portal. Let me just click and show it to you. Okay, I have already gone through it, and that's the series will come in where you get all the exams workbook. You can see the latest workbook also, you can access it. When it comes to the NSM equity derivatives exam, we can go over here, we can see and view the workbook. We can study from here also. So all the workbooks are available in the digital format. तो आपको कोई physical format में workbook नहीं मिलती, आपके पास में सारी digital format में रहती है. So जब हम exams की बात करते हैं, major thing which one need to even remember is the weightage part,
क्योंकि एग्ज़ाम हमें पास करना है, लेकिन उसके साथ हमें ये भी समझना है कि उस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हो सकते हैं और किस टाइप के जनरली क्वेश्चंस आते हैं। So once we are going through the book part, we can clearly see there are a lot of topics over here. And as a professional, the most challenges one person faces, they don't have the time to read all of these things. For the beginner or the fresher who is just coming in, for them understanding these jargons becomes a difficult part. So as I said, the first and the foremost thing after identifying which exam they need to appear for, they need to identify the weightage of which chapter contains what weightage. You can even store it. So every exam contains certain weightages. You can clearly oversee. So अगर मैं equity derivatives का एग्जाम दे रहा हूँ, तो पहली एंड द फोरमोस्ट थिंग व्हाट आई नीड टू लुक एट फॉर कि कौन से चैप्टर या टॉपिक में सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि उस टॉपिक के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अपीयर हो सकते हैं, एंड आई नीड टू गेट अ मिनिमम 60% पासिंग मार्क्स. So I can clearly see from here कि futures and forwards हमें पढ़ना पड़ेगा, options पे you have to work on, strategies क्या-क्या options की हो सकती है futures and options की, and फिर इसके बाद आपका trading mechanism, clearing settlement risk और आपका basic of derivatives आता है. यानी कि अगर हमें इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम को पास करना है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो 2 सेगमेंट्स रोल प्ले करते हैं, एक तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं, प्लस साथ ही साथ आपके इसके ट्रेडिंग मैकेनिज्म, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ट्रेडिंग मैकेनिज्म कैसे करता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है. तो अगर ये चीज़ क्लियर है, तो इट बिकम ईज़ी टू पास दिस एग्जाम. नाउ जब हमने ये समझ लिया, तो वी कैन इवन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टॉपिक और द सब्जेक्ट वी नीड टू वर्क ऑन और द क्वेश्चंस वी नीड टू प्रैक्टिस ऑन. तो चलिए उसकी प्रैक्टिस से पहले लेट्स अंडरस्टैंड अगेन how the weightages work we have identified. So let's understand how the negative marking even works in this exam. So let's understand it. We have given an exam, 100 questions as I said. अब 100 questions में से let's say हमने 80 questions को right answer किया है. हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स एग्जाम एज एन एग्जांपल लिया. वी कैन टेक म्यूचुअल फंड एग्जाम जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो वी आर टेकिंग एन इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम. सो यहाँ पे लेट्स से देयर आर टोटल 80 क्वेश्चंस वी हैव अपीयर्ड राइटली. अब उस 80 क्वेश्चंस में से लेट्स से 80 मार्क्स क्वेश्चंस इज ओवर देयर, उसमें से अगर 0.25 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, उसके बाद 20 मार्क्स ऐसे होते हैं जो केस स्टडी बेस आते हैं. सो टोटल 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर हो गया. टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 25% फॉर द इनकरेक्ट आंसर. सो अब इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर एक एग्जामी करता है. इवन इफ यू आर अ बिगनर, सो बिगनर क्या कहता है कि उनको स्टडी बेसिक्स से, उनको स्टडी द बेसिक्स ऑफ द एग्जाम. वो क्या देखते हैं, हमें ये सारी डिटेल्स पढ़नी है, तो वो थ्योरी ही पढ़ते रह जाते हैं. दे डिडंट एबल टू गेट द टाइम to practice those MCQs. Sometimes they face challenges also in understanding technical jargons. तो उनको अपनी टेक्निकल जार्गन समझने में कई बार चैलेंज आता है, और उनके पास टाइम होता है, लेकिन वो प्रॉपरली एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाते. लेकिन जब हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता स्टडी करने का, बट दे वांट कि उनको रेगुलर प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस की, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, ताकि उनको वर्कबुक पे कम अटेंशन दे पाए. दे कैन प्रैक्टिस मोर ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट्स. लेकिन उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होता है, लेकिन उनको थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत कम होती है. तो ये मेजर चैलेंजेस होता है एक बिगनर्स और एक प्रोफेशनल जनरली फेस करते हैं. उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि अगर कोई बिना फोकस के एक प्रोफेशनल एग्जाम देता है, तो उसकी चांसेस 50 टू 70% होती है सक्सेस रेट की, यानी कि पास होने की. लेकिन अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, देन योर चांसेस ऑफ पासिंग दिस एग्जाम इंक्रीजेस फ्रॉम 70 टू 95% डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्वेश्चंस को किस टाइप से अपेयर किया है. सो दीज आर द मेजर थिंग. बिसाइड दिस थिंग देयर आर अनदर मेजर चैलेंजेस विथ बिगनर्स फेसेस. पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रिपरेशन लेवल हमेशा उनकी कम ज़्यादा रहती है प्रिपरेशन टाइप में, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि वो ज़्यादा थ्योरी या बुक्स ही पढ़ते रह जाते हैं. जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, उनको पता होता है कि जनरली क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन आते हैं, बट दे प्रेफर टू मोर प्रैक्टिस ऑन, इसलिए वो हमेशा एमसीक्यूज या फिर पास्ट पेपर्स पे वर्क करते हैं. बिगनर्स के लिए इंडस्ट्री को बेसिक को पढ़ना पड़ता है, दैट्स देयर फेस अ चैलेंजेस. लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है. जो बिगनर्स होते हैं, उनके में कई बार चैलेंजेस रहता है इन टर्म्स ऑफ देयर डाउट्स. कॉन्फिडेंस कम रहता है, कंफर्टेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि वो एग्ज़ाम से अवेयर नहीं है. जब हम प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो उनमें एग्ज़ाम की एंग्जायटी नहीं होती. उनका एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़ पे वर्क होता है कि कैसे उस एग्ज़ाम को हम जल्दी से जल्दी पास कर पाएँ.
जब हम बिगिनर्स की स्टडी अप्रोच की बात करते हैं, वो प्रैक्टिस को मोर फोकस करना चाहते हैं, डिटेल व्यू पे ज़्यादा जाते हैं और मॉक टेस्ट कम अपीयर कर पाते हैं। तो ये मोस्टली बिगिनर्स करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं मॉक टेस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो कम मॉक टेस्ट पेपर्स पे वर्क करते हैं। जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, तो वो रिवीजन करते हैं, करने की कोशिश करते हैं टू टू देयर हैव लेस टाइम। अपनी चीट शीट देखते हैं कि शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस या क्विक रेफरेंस पॉइंट उनको मिल जाए ताकि दे कैन रिवाइज ऑल दीज जार्गन्स। और प्रैक्टिस पे दे फोकस मोर ऑन कि क्वेश्चंस कितने ज़्यादा है उस पर वो प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सो ये बेसिक सी चीज़ है जो एक बिगनर और एक प्रोफेशनल जनरली चैलेंजेस फेस करते हैं। अब इसी का जो सॉल्यूशन वी आर वर्किंग ऑन, जो हमें वर्क करना चाहिए सो दैट ये हम एनएसएम एग्जाम को हम प्रॉपर्ली पास कर पाए, वो ये होता है कि पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम एनएसएम की वर्कबुक खोलते हैं, जैसे हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स की खोली, पहला फोकस होना चाहिए हाई वेटेज टॉपिक्स पे, जिससे थ्रू हमें पता चलता है न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज और रीजनिंग के बारे में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने बात की थी 2020 फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, इक्विटी डेरिवेटिव्स की, सो ये हमें बताते हैं कि इन टॉपिक्स पे वी नीड टू वर्क मोर ऑन इट। अगर हम बिगनर्स है तो, प्रोफेशनल है तो हमें ये देखना होता है कि इससे रिलेटेड मोर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए, ताकि एग्जाम में अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू अपीयर ऑल दिस एग्जाम फास्टली। सेकेंडली, जैसे कि मैंने कहा, जितने एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करते हैं इट बिकम्स इजी। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन कि हमें ज़्यादा सैम्पल पेपर्स कहाँ से मिले। तो जब हम एग्जाम के लिए अपेयर करते हैं, आपको ऑफकोर्स एनआईएसएम की तरफ से कुछ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। वर्कबुक के अंदर में लास्ट में आपको कुछ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर मैं सिर्फ एक मॉक टेस्ट की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस वर्कबुक में देखता हूँ, तो हर वर्कबुक में उसके मॉक टेस्ट पेपर्स आ जाते हैं, तो इट बिकम्स ईजी। आप यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चंस आ जाए जो आपको एक आइडिया देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन जनरली आते हैं, रीजनिंग बेस्ड आते हैं, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन जनरली कम्स इन। सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, किस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन। हमें क्वेश्चंस हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। सेकेंडली, अगर आपको और मॉक टेस्ट चाहिए तो यू कैन अपेयर और परचेज फ्रॉम आर दानिक वेबसाइट। दानिक पे आप जाके, स्टोर पे जाके आप एनएसएम एग्जाम सेलेक्ट करके, आप इक्विटी डेरिवेटिव्स लेट्स से एग्जाम आप क्लिक करते हैं, एड टू कार्ट करके पेमेंट देके आप दानिक के स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रेजेंटेशंस और एमसीक्यूज पेपर लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। प्लस साथ ही साथ, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप प्रोफेशनल हैं या फिर अगर बिगनर है, हमेशा शॉर्ट नोट्स रेडी रखें। होता क्या है, कई बार हम एग्जाम देने जाते हैं, एक दो दिन पहले हम वापस से बुक को रिवाइज करने बैठते हैं, तो बुक रिवाइज ना करके हम शॉर्ट नोट्स पढ़ें या फिर प्रेजेंटेशंस पढ़ें, ताकि हमें कॉन्सेप्ट एंटायरली क्लियर हो पाए कि हमने इस टॉपिक पे ये कवर किया, इस टॉपिक के क्वेश्चन जनरली आ सकते हैं। और एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम पास करने के। एमसीक्यूज कैसे अपेयर करना है, इसके बारे में, इसकी स्ट्रेटेजीज में जल्दी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बेसिक सा पार्ट ये होता है कि जब भी हम कोई भी एग्जाम देने जाए, हमेशा मेक श्योर करें कि हम उसका प्रेजेंटेशन और उसके शॉर्ट नोट्स जल्दी से पढ़ें, और साथ ही साथ कोशिश करें एटलीस्ट 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, 300 एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करें। बिकॉज जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही ज़्यादा आप एग्जाम के पैटर्न को समझ पाते हैं, और जैसे ही आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर करना इजी हो जाता है। तो ट्राई करें एटलीस्ट 300 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, 300 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करें, कोई सा भी एग्जाम हो। टारगेट इज ऑलवेज एटलीस्ट 300 क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस। थर्ड स्टेप जो मेजरली आता है लास्ट का, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, अनदर स्टेप्स कम्स इन फॉर द रिवीजन पार्ट। हम स्ट्रेटेजीज 4 पे आ चुके हैं। जो लास्ट मेजर स्ट्रेटेजीज आती है एग्जाम के लिए, वो आती है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑफकोर्स हमारा आईडी प्रूफ जो डॉक्यूमेंट होते हैं, एग्जाम एंट्रेंस फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, पेन, पेंसिल, वो सब अपने पास अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल होना चाहिए। और सेकेंडली, सिस्टम फैमिलैरिटी। सो कई बार कुछ हम प्रोफेशनल एग्जाम्स देने जाते हैं, जैसे एनआईएसएम के हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के हो गए, रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम्स हो गए, तो उन एग्जाम्स में कई बार हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। सो अब कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते कई बार, तो वी कैन यूज़ एन एक्सेल वर्कशीट। सो एक्सेल की जो वर्कशीट आती है, वहाँ पे ओपन स्प्रेडशीट करके डॉक्यूमेंट आता है, एनएससी जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है, दैट्स एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट।
तो वहाँ पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक सा डिफरेंस ये रहता है, जो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं वहाँ पे कोमा लगता है, वहाँ पे आपको सेमी कॉलन यूज़ करना पड़ता है। तो आप ओडीएस को भी ट्राई करिए न्यूमेरिकल के साथ-साथ जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे सिस्टम को लेके कोई चैलेंज फेस नहीं कर पाएँ और आपके लिए एक सिमिलैरिटी कम्फर्ट ज़ोन भी वहाँ पे रहे। तो जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, हम जब एग्ज़ाम में डिटेल्स भरते हैं, एग्ज़ाम अपियर करते हैं, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर विच हमें याद रखना चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कि हम पहले उन आंसर्स को सॉल्व करें जिसको हम जानते हैं। यानी कि बहुत छोटे-छोटे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन जनरली आते हैं। इट टेक्स ऑलमोस्ट अ मिनट, 1 मिनट के अंदर में वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सो हमें पहले हमेशा वही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसके आंसर्स हम जानते हैं। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चंस देखने बैठ जाते हैं, कई बार उन क्वेश्चंस के साथ हम टाइम वेस्ट काफ़ी करने लग जाते हैं। जिसके चक्कर में क्या होता है, लास्ट तक आते-आते कई बार पेपर भी छूट जाता है या फिर हम वो क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस को हम प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखिए, 100 क्वेश्चंस से टोटल, अगर 100 क्वेश्चंस है तो उसमें से हमें फोकस ये करना है, उन क्वेश्चंस को पहले आंसर करना है जिसमें जिसके आंसर्स हमें ईज़िली पता है, जो हमसे कम टाइम ले रहे हैं और जिसके आंसर्स में वी हैव द श्योरिटी पार्ट। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और बाकी क्वेश्चंस पे हम इक्वल टाइम दे पाते हैं। सेकेंडली, जो क्वेश्चंस, कई बार हम इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि कन्फ्यूजिंग होते हैं। मतलब जिनके आंसर्स में हम सोचते हैं ये ऑप्शन ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न को यू कैन मार्क इट एज़ अ रिव्यू पार्ट। उस क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट ना करें। कई बार होता है हम उसको सोचने बैठ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन का यही आंसर होगा या नहीं होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए और इमीडिएटली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। क्योंकि द मोमेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे, तभी आप बाकी के क्वेश्चंस अपीयर कर पाएँगे। तो मार्क फॉर रिव्यू पे रख दीजिए जिस क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो। और कई बार न्यूमेरिकल या कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है जिसके आंसर्स में आपको लगता है कैलकुलेशन काफ़ी लंबी होती है, उसको डायरेक्टली आप अनअटेम्प्टेड रख के छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए फॉर द टाइम बीइंग। जब तक आप बेसिक जो आंसर्स आप जानते हैं, जो क्वेश्चंस आपके लिए ईज़ी है, वो पहले आप अपीयर कर लेते हो। उसके बाद आपके पास समरी आती है। आप जैसे ही समरी देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, आप मान के चलिए जब आप ये फटाफट से जो एश्योरिटी वाले आंसर्स होते हैं, आप विदिन 45 टू 50 मिनट्स में आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो कि आपको 60% तक का कोर्स सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प आउट करता है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसके आंसर्स आप जानते हैं, प्रॉपर स्टडी करने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया जिस चैप्टर के वेटेज को आप देते हैं, तो 60% तक आप सॉल्व कर पाते हैं जिसके आप फटाफट सिंपल क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज़ होते हैं। और उसके बाद जब आप टोटल रिव्यू करते हैं क्वेश्चंस का, वहाँ पे आपका एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है एंड दैट हेल्प्स यू आउट इन क्लियरिंग दीज़ एनआईएसएम एग्ज़ाम्स। सो जब आप रिव्यू करते हैं, सो हमेशा याद रखिएगा, पहला जो क्वेश्चंस आप जानते हैं उनको आप सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंडली, जिन क्वेश्चन को लेके आप कंफ्यूज हैं उनको आपने मार्क टेस्ट रिव्यू कर रखा है। जिन क्वेश्चंस पे आपको टाइम देना है बाद में, उनको आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ रखा है। और जब आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के पास जाते हैं, ना कि मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस के पास जाते हैं। सो यू वर्क ऑन द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, क्योंकि उन क्वेश्चंस को अब हम टाइम देना चाह रहे हैं बिकॉज हम उनके आंसर्स जानते हैं या उनका स्ट्रक्चर जानते हैं कि कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 मिनट्स वी गिव दैट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को हम जनरली सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को हम रिव्यू करके उनको हम सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद जब उनको हम सॉल्व कर देते हैं या उनको लेकर कन्फ्यूज़ होता है, अगेन वी मार्क देम रिव्यू और फिर वापस से हम समरी में आते हैं। अब जब हम समरी में आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल पार्ट, कि हमने 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, जिसमें से 20 हमने मार्क्ड एज़ रिव्यू करे, या कुछ हमने अनअटेम्प्टेड आज भी छोड़ दी जिसके हम कहते हैं यार इसको हम रिस्क नहीं ले सकते, या आपका ये 0 भी हो सकता है या 1-2 भी हो सकता है। सो अगर हम कंसीडर करते हैं, नाउ विल कैलकुलेट हाउ मच स्कोर वी कैन गेट ईज़िली, कि जो हमने अटेम्प्ट किया उसकी क्या श्योरिटी है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम क्वेश्चन देते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है हमारा एग्ज़ाम पेपर अच्छा जा रहा है। दैट वी आर गिविंग अ वेरी गुड एग्जाम एंड आवर एक्यूरेसी इज गुड। सो जितने हमने अटेम्प्ट किए हैं उसको हम एक बॉल पार्क फिगर ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी कंसीडर करके, कि यार जो 70 क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड ऑन उसकी 90% क्वेश्चंस विल बी द करेक्ट। 10% ऊपर नीचे हो सकता है हो जाए, पर 90% आई एम श्योर कि वो 70 क्वेश्चंस जो हमने अपीयर किए वो करेक्ट है। 20 को हमने मार्क टेस्ट रिव्यू किया, 10 हमने अनअटेम्प्टेड छोड़ रखा है। तो यानी कि अगर मैं 70 क्वेश्चन से अपीयर किए हैं तो 90% के हिसाब से 63 मार्क्स मेरे कंफर्म है। इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम्स के लिए मुझे एटलीस्ट 60% दिए, 63 मार्क करेक्ट है। लेकिन
अब यहाँ पे प्रॉब्लम कई बार क्या होती है, जो हमने मार्क टेस्ट रिव्यू किया है जिसको लेके हम कंफ्यूज है, लेकिन हमने उसमें आंसर्स पे क्लिक कर लिया है, वहाँ पे हम प्ले करने की कोशिश करते हैं और वहीं पे हमारी ब्लॉकेज होती है। सो लेट्स से अगर हमने वो 20 क्वेश्चंस मार्क करे, उन 20 में से 20 ही गलत हो गए, तो यानी कि हमें 20 गलत हुए हैं तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, यानी कि 5 मार्क्स वी हैव टू डिडक्ट। तो 63 क्वेश्चन में से 5 मार्क्स हमने डिडक्ट कर दिए। 10 क्वेश्चन तो वो हुए तो 2.5 मार्क को 7.5 मार्क्स लगभग ही हो गए, लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि 90% यहाँ पे है, तो भी हमारा एटलीस्ट 5 मार्क हम डिडक्ट करते हैं, तो हम 60% स्कोरिंग से बिलो स्कोर कर बैठते हैं और हम यही सोच के बैठ जाते हैं कि यार ये क्वेश्चन में अपियर नहीं कर पाया, 1 मार्क से रह गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ स्मार्ट डिसीजन। हम एक्यूरेसी पे जब हम काम कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चंस वी हैव टू गिव। अगर हम सही आंसर्स देते हैं तो 1 मार्क्स हमें मिलता है, गलत आंसर्स देते हैं तो वी लूज 0.25 मार्क्स। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव अपीयर्ड फॉर। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला स्ट्रेटेजी के लगाइए कि अगर मैं 70 क्वेश्चन मार्क किए हैं, वी कैन गेट दिस थिंग। आप 5 मार्क्स है तो 58 मार्क्स हमें मिल सकते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन, इसके बेस पे हम स्कोरिंग भी कर पाते हैं। अब इसी में हमें जानना है कि अगर मुझे पास होना है तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पास करने की ज़रूरत है। सो लेट्स से अगर मुझे 50% स्कोरिंग है तो एटलीस्ट जो कॉन्फिडेंटली मुझे सही आंसर करने हैं वो कितने क्वेश्चंस करने हैं, 70 क्वेश्चन मुझे आंसर करने हैं। अगर 20 मार्क टेस्ट में छोड़ता हूँ, यानी 20 क्वेश्चन के साथ मैं गेम खेल रहा हूँ, तो 10 क्वेश्चन जो मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़े उस पर मुझे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। सो मेरे लिए मैटर करता है मार्क टेस्ट रिव्यू या वो क्वेश्चन जिस पे मैंने प्ले खेला है। तो सो अगर 20 खोले, ऑफकोर्स 5 मार्क्स कैन डिडक्ट आउट, विल गेट इट आउट। 70 आंसर्स की है 100 में से, सो पासिंग मार्क्स 50 है। अगेन 5 मार्क के करेक्ट आंसर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 55। सो दैट मीन्स अगर 50% पासिंग स्कोर है, 70 क्वेश्चन हैव अपियर्ड, मेरे चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि अगर 20 गलत की है तो एटलीस्ट मुझे 55 मार्क्स चाहिए होंगे टू पास दिस एग्जाम। वहीं अगर 60% चाहिए, अगेन 70 आंसर करेक्टली किया, 20 गलत है तो 5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, तो 65% स्कोर आ पाता है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि स्कोरिंग कैसे बैठ रही है। आपकी स्कोरिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं करेक्टली, वो जो क्वेश्चन आपने मार्क टेस्ट रिव्यू किए, यानी कि उन क्वेश्चन पे यू हैव प्लेड अ गेम, तो वहाँ पे हमें स्मार्टनेस प्ले करनी है। उसके बेहाफ पे ही वी कैन आइडेंटिफाई कितने क्वेश्चंस हमने राइटली आंसर किए, कितने क्वेश्चंस हमने रॉन्गली आंसर किए। उन 70 अगर हमने कॉन्फिडेंटली वी आर मेकिंग श्योर कि 100% वही करेक्ट है, तो हमारी कैलकुलेशन सही है। लेकिन अगर उसमें 10 क्वेश्चन भी गलत आते हैं तो प्लस मार्क टेस्ट रिव्यू के अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि जो 20 है उसके अलावा 2.5 मार्क्स और कम हो सकते हैं, तो दैट मीन्स हमारा स्कोरिंग बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, यू मेक श्योर कि जितने क्वेश्चन आपने करेक्टली आंसर किए उसके प्रॉपर मार्क्स आपको मिले हैं। मूविंग हेड फर्दर, जब आप क्वेश्चंस फास्टली अपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने कहा सिंपल क्वेश्चंस हमेशा पहले आंसर करिए, तो आपका टाइम बच जाता है। कोई न्यूमेरिकल या लेंथी क्वेश्चन आता है, 5 मिनट से ज़्यादा उस पर आप टाइम स्पेंड मत करिए, क्योंकि उसके बाद आपका फोकस करके यू माइट गेट कन्फ्यूज और या कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। सो मेक श्योर करें आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम दें। ज़्यादा टाइम आप देते हैं तो बाकी क्वेश्चन को आप वेटेज नहीं दे पाएंगे। लास्ट में जब भी आप रिव्यू करते हैं अपने पूरे क्वेश्चंस का रिव्यू करिए, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चंस आपने मार्क टेस्ट रिव्यू छोड़े, उनको आपने अटेम्प्ट किए लेकिन यू आर कंफ्यूज आउट, सो यू हैव प्लेड द गेम, और अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं। सो अनअटेम्प्टेड के कोई मार्क्स नहीं करते, लेकिन जो आपने अटेम्प्ट किए उसमें से जो गलत होते हैं उसके आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं और उसकी 100 के हिसाब से स्कोरिंग होती है। सो इसी से स्ट्रेटेजिकली यूज करने के लिए ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो करेक्टली अटेम्प्ट करें। और अगर किसी का मार्क टेस्ट रिव्यू कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप इस एग्जाम में पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एग्जाम का स्ट्रक्चर वेटेज पे ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने बताया, एनआईएसएम की साइट पे आप जा सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल या उस एग्जाम के टॉपिक या वेटेज देख के आप एनालाइज कर सकते हैं किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा वर्कआउट करना है। एमसीक्यूज के लिए देयर इज़ अ वेबसाइट, वी हैव तानिक ऑल्सो। तानिक पे आप जाके आप कोर्स सिलेबस देख सकते हैं, वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और इवन प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, जो कि आपको 1 डे बिफोर एग्जाम की प्रैक्टिस करने में हेल्प आउट करता है। इसी के साथ साथ कैलकुलेशन सैम्पल सीट्स वी हैव प्रोवाइडेड आउट, जहाँ पे आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स देके कैलकुलेशंस देके प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं।
तो इस तरीके से आप एनआईएसएम के एग्जाम्स को पास कर सकते हैं, उसके रिसोर्स को इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कुछ टिप्स मैं आपको और देना चाहूँगा इसके साथ साथ। जब आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, अपने एग्जाम के कोर्स सिलेबस के हिसाब से दीजिए। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर हम इक्विटी डेरिवेटिव्स का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे आपका वेटेज आता है। सो हमेशा मेक श्योर करें कि जिस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ऑफ कोर्स एमसीक्यूज है तो इतना टेंशन नहीं रहती, तो यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस, बट वो ऑप्शंस राइटली आइडेंटिफाई करना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, या तो आप खुद बनाए अपने शॉर्ट नोट्स, नहीं तो यू कैन ऑप्ट आउट फॉर दानिक रिसोर्सेज, जहाँ पे भी आप प्रोवाइडिंग विद शॉर्ट नोट्स, प्रेजेंटेशन एंड सैम्पल कैलकुलेशन शीट्स ऑल्सो, जो आपको लास्ट मिनट रिविजन करने में हेल्प आउट करता है। और जितनी जल्दी आप क्वेश्चन आंसर करते हो उतना ही टाइम आपके पास, एम्पल ऑफ टाइम लास्ट में बचता है। कुछ एफएक्यूज जनरली लोगों के पास हम वी ऑलवेज रिसीव्ड इट आपके पास आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे, इट्स अ 0 मार्क्स, आपको उसमें 0 मार्क्स मिलते हैं, ना आपको नेगेटिव होता है ना कुछ होता है। सो अगर आपने 100 में से 10 अनअटेम्प्टेड की है, कोई बात नहीं, बाकी अगर 90 आपने अपेयर किए तो 90 में से आपकी मार्केज होती है, बाकी 10 आपका वो चला गया। नेगेटिव मार्किंग किस पे लगती है? उन क्वेश्चंस के जो आपने गलत अपेयर किए। सो 90 में से लेट्स से आपने 10 क्वेश्चंस गलत अपेयर किए, तो आपको 80 में से 10 के हिसाब से 0.25 यानी कि 2.5 पॉइंट आपका माइनस होके, तो आपका स्कोरिंग 80 पे आ जाता है। दैट कम्स आउट टू बी ऑफ 78.5 और 77.5 करके आपका स्कोरिंग वहाँ पे पहुँच जाता है। दैट मीन्स आप वो एग्ज़ाम पास कर पाते हैं। इट्स ऑलवेज अ बेटर, अगर आप किसी क्वेश्चन को लेके श्योर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, because skipping is much better because it can cost you -2.5. So always remember, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं so make sure करें कि आप उनको properly apply करें, because sometimes skipping a tough question is better than guessing incorrectly. So skipping is always the best option. आप skip कर दीजिए, कोई भी ज़्यादा difficult question आ रहा है तो make sure करें कि आप guess नहीं करें, calculate करें इसको। और जब लास्ट की हम कैलकुलेशन समरी की बात करते हैं क्वेश्चंस की, इट जनरली टेक्स अराउंड 50 to 60 सेकेंड्स। वहाँ पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इस एग्ज़ाम को प्रॉपर्ली पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर कर सकते हैं। अवॉइड कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं कि आप बुक को ही ना पढ़ें, एमसीक्यूज़ पेपर्स को प्रैक्टिस करें और वेटेज पे ध्यान दीजिए, किस चैप्टर या टॉपिक में सबसे ज़्यादा वेटेज है। चाहे आप एनएसएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का दे रहे हैं, रिसर्च एनालिस्ट का दे रहे हैं, या फिर आप कोई सा भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने पर्टिकुलर गोल के हिसाब से। इस तरीके से अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर करते हैं तो यू कैन इजीली पास द एनआईएसएम एग्ज़ाम विद एन एस। सो विद दिस थिंग, एनी अदर क्वेश्चन कम्स इन यू कैन आस्क, और आपके जो भी फीडबैक है आप हमें चैट बॉक्स पे, हमारे जो दानिक की वेबसाइट है, इस वेबिनार के नीचे अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, ताकि आप इस एग्ज़ाम्स को अच्छे से पास कर पाए। वी कीप ऑन ट्राइंग कि आपको रेगुलरली प्रॉपर रिसोर्सेज मिल पाए, ताकि आप एनआईएसएम एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाए। सो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, आपके कोई भी फीडबैक आते हैं एनएसएम के हमारे मॉक टेस्ट पेपर्स को लेके, तो आप वहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्कशंस करना है, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा, तो हमारी कम्युनिटी है डिस्कशन, वहाँ पे आप वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर पूछ सकते हैं। सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस एज वेल। विद दिस थिंग विल एंड दिस वेबिनार एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी एनएसएम के पेपर्स दे रहा है, मेक श्योर करें आप प्रॉपरली एनएसएम के एग्जाम को स्टडी करें, और फिर आप इजीली एनएसएम एग्जाम को पास कर सकते हैं स्ट्रेटेजिकली। तो कंफ्यूज मत होइए, एंड गुड लक फॉर द एग्जाम पार्ट। थैंक यू।